Hello, friends. This is film critic Ahwaan, and you are watching us on our channel, The Movie Cafe. Today, we have with us the co-creator of the recently released series on Amazon Prime, Jubilee, and Soumik Sen. Welcome, sir. And along with that, we have actor, Vikas Shukla, who plays Asghar Ali, and actor Pankaj uh, Jhaa, Kashyap, who is also playing the role of a cop in the series. तो मेरे इनके साथ आज हमारे को होस्ट भी जुड़े हैं, गरिमा कुरेशिया। हाय गरिमा। एंड आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आप तीनों के साथ। तो जुबली एक अमेजिंग सीरीज है। ये सीरीज पहले जब 5 एपिसोड्स इसके प्राइम में आए तो उसको देखने के बाद वी वर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड टू द मैजिकल एरा ऑफ द 50s, द गोल्डन एरा जिसको कहते हैं। और बाकी के 5 एपिसोड के लिए सब्र नहीं था, मतलब इतना इंतजार किया वो बाकी के एपिसोड्स के आने के लिए, नेक्स्ट 5 एपिसोड्स नेक्स्ट वीक। हर एक दिन को इंतजार किया कि कैसे हम ये देख सकते हैं। इतना लाजवाब सीरीज बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, सौमिक जी, एंड ऑफ कोर्स विकास जी एंड पंकज जी। तो थैंक सब यू। या तो गरिमा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ यू। Thank you so much. First of all, thank you to all of you for joining our show and congratulations because जहाँ पे भी हम सुन रहे हैं जुबली की बात हो रही है। मैं अपने Instagram पे देखते रहती हूँ, then all the celebrities are talking about it. Such a beautiful tribute to our classic Hindi cinema. तो पहले तो I want to ask one by one आप तीनों से कि कैसे फीलिंग आ रही है, स्पेशली टू सौमिक बिकॉज आपने आपने इसको बनाया है, आपने सोचा था जब पहली बार और अभी नाउ यू सीइंग इट, सो हाउ आर यू फीलिंग? Very good, yeah. In terms of very happy. Actually, हम लोग बहुत बड़ा सोच हमेशा से सकते हैं, and it's just that the opportunities don't come. It's not that you can't think big in terms of large ideas. And by and large, ये बड़ी ideas जो होते हैं या बड़ा आप कुछ करना चाहें, तो उसको माउंट करने के लिए हमेशा एक बड़ा स्टार चाहिए होता है। मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात कर रहा हूँ, इवन वेब में भी। ये ऐसा मौका था where an idea or a story has been given the right kind of mounting that it deserves, and hence all the credit goes to Amazon Prime for having greenlit something like that. We can make stuff which is international, which is like international also is a very broad based term, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जो कि बिल्कुल ही कचरा है, लेकिन हमको लगता है कि गोरों ने बनाया तो अच्छा ही होगा। We Very are good, sir. as बहुत सही good, आपने कहा. we are as good storytellers, if not better. We also have, हमको एक और भी प्रॉब्लम है. I'm actually speaking a little macro. हमारा लेंस जो है ना वो हॉलीवुड का लेंस है. So we always try to compare ourselves with, अरे देखो उन्होंने कैसे बनाया, which may not be correct. So anyway, ये तो गया self critical process and all of that. But obviously when you write something like this, आप सोच ही सकते हो कि मैंने actually इससे पहले किशोर कुमार बायोपिक लिख रहा था, जो कि अभी भी मतलब it's been in the works for 11 years now. So तो तब मुझे आइडिया आया about this. So I knew that any industry is very exciting. हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कहानी तो मतलब कहानियां जो है वो इंडस्ट्री अब रहा नहीं. ओके, वो अभी रहा नहीं. I think post a certain period of time it is gone. Abhi to it's become like any 9 to 5 job. But that industry and what it used to do and the kind of stories that you hear and usko pirona and to put it into a certain kind of context, obviously advertise it, create your own characters, वो हमेशा से ही बहुत मजेदार होने वाली थी. As and when you get to make it, the question always was कि that you get to make it and get to make it right with an exciting story with a little new age and not like some like a very साफ सुथरा, वो बोलते हैं ना साफ सुथरा without any, हम तो यार सब बहुत अच्छे थे और
people used to make really great things, बहुत ही महान लोग थे and all that. ऐसा कुछ नहीं था यार, सब हाड़ मास के इंसान ही थे. So you create that world, you create those conflicts, and you create the natural jealousies and crimes and everything. Then what comes across is this. And obviously you say it with the kind of, the resources that have been put together. So वो है. In fact, today, it's the reason why I told you इसको थोड़ा आधा घंटा पीछे कीजिए. You will not believe who I was with today in the afternoon. I was sitting with Himanshu Roy's grandniece. Oh, And, good. and I don't know her from Adams. मैं जानता भी नहीं था उन्हें. She reached out to me. अच्छा. After the show, Yeah. So she reached out to me. She binge watched the whole show. I actually put out a picture of her and me together today on his Facebook right now. अच्छा. And she had a lot of great things to say, obviously. But she also had lots of other things to say, which I can't tell you. So, which is not to do with the show, but it's to do with her grand uncle. So, yeah. So because ours is anyway, I said, yeah, ours is a fictional take on various characters. So, so but yeah, it's lovely to see that not only are lovely to see the kind of acceptance. It's really unprecedented. मेरे ख्याल से, और ये अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है. तो ये सेकंड पार्ट को तो 3 दिन ही हुए हैं अभी. हाँ. So I think the more people see it, they will get an idea. So hopefully it'll travel. हम जब क्रिएट करते हैं कहानी वहानी, अपना पॉइंट तो ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. वो अभी इसको थोड़ा देखते हैं. So good, yeah, it's very happy. I'm very happy. A lot of phone calls and a lot of लोग ये भी पूछते हैं क्या नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, all of that. So when that happens, कि अच्छा चलो. हम भी पूछने वाले हैं थोड़ी देर में. Now I'll ask प्रकाश, आप बताइए आपको कैसी फीलिंग आ रही है? See, the thing is कि शो के जो रनर हैं या शो जो बनाते हैं, मैं तो सारा का सारा मुझसे कोई पूछता है, मैं बोलता हूँ प्लीज, मैं इस बारे में बोलने शायद लायक नहीं हूँ. तो सौमिक सर हैं, विक्रमादित्य मोटवानी सर हैं, और बाकी जिन लोगों ने मिलकर ये शो सोचा होगा सबसे पहले, तो जब कोई शो के बारे में सोचता है ना, उसमें जितने किरदार होते हैं उसके किरदार को वो जीते हैं. ये शायद हो सकता है 10 साल पहले सोचा होगा इन्होंने, 5-6 साल पहले सोचा होगा, क्योंकि मुझे जहां जानकारी मिली कि 4-5 साल से ये बन रहा था शो, फाइनली जाके ये रिलीज हुई है. तो इतने सालों से वो हर एक किरदार को जी रहे होंगे. और हम तो एक एक्टर होते हैं कि चलो अभी अचानक से स्क्रिप्ट मिला और कहा गया कि चलो आप फाइनल हो गए इस किरदार के लिए और आपको ये प्ले करना है, तो उसके बारे में फिर हम रिसर्च करते हैं. बट ये तो लोग ऐसे हैं जो सब रिसर्च करके सारे किरदारों के बारे में पूरा डेप्थ में जाके रिसर्च करके बैठे होते हैं. तो मैं तो इन सारा का सारा क्रेडिट जो है वो सर को, सौमिक सर को और विक्रम सर को मैं देना चाहता हूँ. जहां तक फीलिंग की बात है, डेफिनेटली जब आप पर्दे पे होते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो यार, एज एन एक्टर जो हमारा काम था हमने शायद ईमानदारी से कर दिया है. I think the director and the whole team puts a faith in you in the first place, and then you have to prove that via your acting, via your characterization, and सबसे पहले तो ये तो होता है कि पर्दे पे वो आने के बाद लोगों को कैसे लगेगा, कैसा रिएक्शन होगा. तो मैं एक्चुअली खुश हूँ क्योंकि मेरे बारे में सौमिक सर ने और शो को जो राइटर हैं, क्या नाम है सर का, अतुल सबरवाल सर. तो अतुल सबरवाल सर ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि पंकज, आपके किरदार का जो एक डायलॉग है वो डायलॉग बड़ा लोगों के जबान पे चढ़ा है और बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को कि मुर्दों का तो कोई मजहब नहीं होता है मियां जी. तो वो जब मैं बोलता हूँ तो वो काफी अच्छा लगा है लोगों को. तो बड़ी खुशी होती है कि चलो यार कुछ तो, एक्चुअली में लाइंस भी बड़े अच्छे मिल गए. तो हम बड़े मतलब खुशनसीब होते हैं कि जब हमें लाइंस अच्छा मिल जाता है. और किरदार तो अपनी जगह है, बट लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक एक्टर के लिए एक्चुअली.
तो जब हम शूट कर रहे थे तो एक्चुअली बहुत मजा आया था। विक्रम सर ने अचानक से बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया था सेट पे, जब हम वो पुलिस चौकी वाला सीन शूट कर रहे थे। उसमें सिगरेट पीना नहीं था, स्मोकिंग बिल्कुल था ही नहीं, उन्होंने स्मोकिंग डाल दिया। और बाद में जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार कमाल का, मतलब ये जो इम्प्रोवाइजेशन है अद्भुत है। ये तो मतलब ये जो विजन है कि स्मोकिंग के साथ में कैसा लगेगा जब आप पूरा वो धुआं धुआं है और थप्पड़ वप्पड़ मार रहा है, पूरा का पूरा एक माहौल ऐसा बना पड़ा है। So amazing, amazing, amazing. Thank you so much, the entire team who put a faith in me, and I think मैंने प्रूव किया है शायद। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड विकास जी, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं कि मेरी कास्टिंग एक दिन पहले हुई थी शूटिंग से। अच्छा, ये हाँ, जनरल म्यूजियम में लिखा हुआ है कि मैं एक दिन पहले कास्ट हुआ था असगर के लिए, शूट शुरू होने से पहले, एक दिन पहले। तो आप मेरा जो लास्ट सीन देखेंगे, वो जो कि सीरीज का लास्ट सीन है, वो मेरा पहला दिन था शूटिंग का। एंड आई वाज लाइक कि मुझे इतने बड़े सेटअप में आ गया मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ऐसा था। तो बहुत सारे उस सीन में कई सारे टेक्स हुए थे, जिसमें कि मैं अपार मदन कुमार जो अपार शक्ति, उनको उनको मैं कहता हूँ कि तुमने मेरी फिल्म बर्बाद कर दी, ये है वो सीन। मैं इतना नर्वस था क्योंकि मैं अभी जस्ट आया हूँ और सीन, इतना बड़ा सीन दिया है, इंटेंस सीन है। तो आई वाज लाइक यार कैसे करना, मैं इतना अटक गया कि मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें। फाइनली सर ने बोला नहीं नहीं, इसका पहला दिन है और थोड़ा सा लग रहा है। देन अचानक देखिए, कुछ चीजें अच्छी होनी होती है, क्योंकि मुझे भी एक्टर हूँ, तो मुझे भी समय चाहिए होता है, क्योंकि मैं उस तरह का एक्टर नहीं हूँ कि जो मैं तुरंत कुछ कर दूं। तैयारियां कुछ चीजें होती हैं ऐसे कैरेक्टर के लिए। तो फाइनली क्या हुआ, फिर उस टाइम लॉकडाउन पड़ गया, करीब 2000 अपना जो दूसरा लॉकडाउन पड़ा था। अप्रैल में शूट हो रहा था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और 2-2.5 महीने बाद शूट हुआ। अच्छा, देखिए, हाँ, कुछ चीजें अपने लिए अच्छी होनी होती हैं, तो क्या होता है कि उसमें मुझे उस कैरेक्टर को जो कि मैंने प्ले किया है असगर अली, एटलीस्ट कम से कम मुझे उसे पढ़ने का, समझने का मुझे मौका मिला कि करना क्या है, क्योंकि इसमें काफी सीन्स हैं। तो उसमें मतलब और भी किरदार, उनके साथ कैसे रिदम बनाना है, तो एटलीस्ट कम से कम मुझे पढ़ने का, उसको स्क्रिप्ट को समझने का। जब मैं वापस, हम लोग मसूरी शूट करने के लिए गए, क्योंकि दूसरा स्केड्यूल मसूरी में था जुलाई में। वो तो एक्चुअली आप मसूरी ही था बेसिकली, जहाँ पे वो फिल्म के बारे में लिखते हैं, नीलोफर आती है, विनोद कुमार आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, वो जो बातचीत तो मसूरी में ही जाके हम लोगों ने उसे शूट किया था। अच्छा, और हम आपको बताएं, हाँ, अब मतलब एज एन एक्टर, उसके बाद फिर वो, मतलब फिर पीछे, मतलब फिर इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना होमवर्क जब करके जाते हैं, तो आपको समझ में भी आता है कि आपका डायरेक्टर आपसे क्या चाहता है, और जिसने जो लिखा है उसके साथ आप कितना न्याय कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज फिर मुझे समझ में आ गई, और फिर इतना मजा आया पूरी टीम के साथ और एक्टर्स के साथ में। इवन जो जो अतुल सर ने जितने भी जो जिस तरह का कैरेक्टर लिखा था, तो वही है कि वो जो कुछ किया वो आप सबके सामने, बस इतना कहूंगा कि एक बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक बड़ी सीरीज का मैं, और जो मुझे काम दिया गया उसको मैंने अपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सामने रखा, जो भी उसमें चाहिए था। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असगर साहब ओवर आप, टू यू अहवान। हाँ। तो असगर साहब से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब नॉट असगर साहब, मैं बार बार असगर साहब बोल रहा हूँ, विकास जी। मैं उस कैरेक्टर में खो गया हूँ। नहीं, तो उसमें हाँ, पर्सनली हाँ, मुझे ऐसा वो, ही किया ये जो कैरेक्टर है था। ना असगर साहब, वो बहुत मुझे बहुत दुखी कर दिया बेसिकली। वो इंसान सबसे इतना प्योर इंसान है, वो अपना एक इतना ईमानदारी से उसने एक अपना स्टोरी लिखा, वो भी ये रॉय साहब ने और विनोद कुमार ने आकर उसको बर्बाद कर दिया। तो आई फेल्ट वेरी पिटी, आई फेल्ट वेरी पिटी फॉर हिम। तो इसलिए ये हर राइटर की कहानी होती है अहवान। जो इंडस्ट्री में जो राइटर हैं उनकी बड़ी विडंबना है, बेचारे इतने मेहनत से लिखते हैं, जी। और जब जाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, वो पूरा चेंज वेंज करके अपना पूरा आइडिया वो घुसेड़ देते हैं। तो ये वही है विडंबना जो जिसको इन्होंने प्ले किया। ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है, बिटर ट्रूथ है, बट है। आपने इस कैरेक्टर के लिए थोड़ा वेट पुट ऑन किया था क्या विकास जी? क्योंकि आप थोड़ा अलग लग रहे हैं इन रियल लाइफ।
हाँ, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा के सामने बोलना मतलब पता नहीं कितना सही होगा कि अल्कोहलिक था तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा। ठीक है, तो मैं आपसे कहने वाला, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कुछ ऐसा कि मेरा बॉडी का अपने आप एक वेट वो मतलब था पहले से ही, और उसका आप यूं कह लीजिए कि अ, किरदार के हिसाब से वो चला गया। कभी कभार कुछ ऐसी वैसी चीजें भी आपकी जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ दे के चली जाती हैं, है ना, जी। जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं या कहते हैं। तो मुझे आया, कभी भी कुछ भी आपके लिए काम कर सकता है। तो उसमें जो मैं दिख रहा हूँ और जो कुछ है, वो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं था। वो नेचुरली जो जीवन की दिनचर्या थी उसी में ही मैं था, और उसी को ही लेके मैंने बस पहुंच गया। अब वो कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि राइटर है तो उस हिसाब से चला गया। उसके बाद हालांकि मैंने बहुत ज्यादा वेट मेरा गया। आज मैं आपके सामने बिल्कुल मतलब एटलीस्ट 12 किलो वेट अपना उसके बाद मेरा कम हुआ है। अरे बाप Wow. रे। सौमिक Vikaji, I'm gonna take tips from you after the interview. सौमिक जी, आपसे एक सवाल है। हम इसमें जुबली में देखते हैं कि जो इनका स्टोरी है रॉय टॉकीज का, it has a lot of parallels to Himanshu Roy and Devika Rani's Bombay Talkies, right? लेकिन ये जय खन्ना, who is one of the most fascinating characters in the series, जिसको सिद्धांत गुप्ता ने प्ले किया है, वो आपसे वो उसका कैरेक्टराइजेशन आपने कैसे सोचा? मतलब इज इट फ्रॉम द लाइफ ऑफ राज कपूर और फ्रॉम द लाइफ ऑफ दिलीप कुमार? कौन कौन था ये जय कुमार? हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस कैरेक्टर? No, I mean, it's a, as I said, it's a combination of various people. अच्छा। Not, So if you look at history, if you specifically look at history, I mean, a lot of people did come from across the border जी जी। around partition. राइट। लेकिन ये भी, that this is also a fact that at that point of time, Pakistan also had a film industry, right? Peshawar में picture बनती थी, and there were film studios which were run by people who also came here. So that was one element. We tried to blend in a lot of things, One, of course, being this entire battle of old versus new, which is essentially theater versus cinema, and how cinema kind of is the new thing. It's the thing for the future, or theater is, theater is theater. So for a theater director, a playwright and a director to come here because partition के rights के वक्त कुछ निकल गया है, was a very common experience that a lot of people would have faced. जी। So and that would be so it's a combination of various things. तो ऐसा कोई एक किरदार नहीं है. Of course, I mean, Dev Saab, had his own charm and his own way, and he himself was an actor director. First an actor, then a director, then an actor director producer, and all of that. And of Ketan as a banner was what it was. RK Studios actually जो चीज यहाँ पे दिखाया गया है, I mean, way before Raj Kapoor, Prithviraj Kapoor, who's one of the founding members of the IPTA, came to India much before. So वो People's Theatre, IPTA के founding father हैं. And of course, the theater was big and all of that. So he had his own theatrical ambition, and the son obviously embraced technology. So there was, elements there as well. Dilip Saab, we all know, was picked up by Devika Rani while he was selling fruits, राइट। right? And they got his name changed and all of that from Yusuf Khan. So it's a combination of various tidbits of various people to create this one character who's like a maverick. जी जी जी। तो उसी तरीके से सोचा गया था. And yeah, that's about it. So ऐसा कोई है नहीं. I mean, people are saying, because he used to work for Himanshu Rai, and Shrikant Roy is the name, and Roy Talkies is what they're calling it. But you must also remember that Kumud Ganguly, which is Ashok Kumar, जी। came from an extremely well-to-do family in Khandwa. His father was a lawyer and then a judge, and he was a lawyer, he was not a judge, and he himself, it was a family of lawyers,
और कुमुद गांगुली ट्रेन्ड टू बी अ लॉयर, बट उनको मजा नहीं आता। तो तब सिनेमा आ रही थी, एंड हिमांशु राय वाज also Himanshu Rai Devkarani met in London. अच्छा So he actually again started acting in Light of Asia. It was only his brother's film. अच्छा And वो हिमांशु देख was के he wanted to also an play. actor. अच्छा okay. Yeah. He was Okay. an actor first, and yeah. So lot of It's a combination. elements. Obviously, आप पढ़ोगे तो there's so much that you read about that period and the technology and what happened, and it's the story is set around independence. हालांकि ये लोग are actually from a much earlier era, 30s. so हाँ. which is why 1936 से है I think. Right. हाँ उससे भी पहले, उससे भी पहले, I mean Kishore Kumar came to Bombay in 1929. So Ashok Kumar was a superstar then, so it was much earlier. So Second World War had a huge impact because the price of film and price of silver halide and all that was affecting. So it's like any other industry, right? So you take the premise. We took the premise of the Indian film industry almost like a startup that's starting on its own, right? And you have established players and you have new players and people trying to outfox one another. So in that environment, you have the politics behind it and the politics of entertainment and people trying to make do with things. So so that's essentially what it is. Okay. Garima. Okay, so I have a question to both the actors. क्योंकि अभी की आजकल जो मूवीज आती हैं या जो सीरीज आती हैं इसमें लैंग्वेज बहुत अलग है। मतलब हम नॉर्मल कैजुअल हिंदी में बात करते हैं, बट पुराने जैसे जैसे जुबली की अगर मैं बात करूं तो बहुत शुद्ध हिंदी में, एक्टर्स भी बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते थे। और पुरानी जब हम मूवी देखते हैं तो वो बहुत ही क्लियर स्पीच होती है जो कि आज इतना हम नहीं फॉलो करते। तो फॉर योर कैरेक्टर, बिकॉज आपको बाकी सारे एक्टर्स के साथ आपने कुछ प्रिपेयर किया था उसके लिए, वैसे हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर स्पीच आती है सारे एक्टर्स। You can start first, or anyone. Vikas. मेरे साथ ये था कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ ये था कि मैं आता हूँ लखनऊ की तरफ से, ठीक है। तो मेरे लिए उर्दू और हिंदी का मतलब ऐसा था कि मुझे अपनी उर्दू और हिंदी पर मतलब कमांड है अच्छा, ठीक है। तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई थी उसमें, क्योंकि आपने जब मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि शब्द मेरा में मतलब आप सुन सकते हैं क्लियर है बाकायदा। काफी। हाँ तो जी, तो उसमें मुझे हिंदी बेल्ट से आता हूँ, मेरी परवरिश हिंदी में हुई है, उर्दू हिंदी में हुई है। तो मुझे मतलब, और एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा टूल मेरी भाषा ही होती है। मतलब मेरा टूल अगर मजबूत है तो मुझे अपने किरदार पे काम करने में आसानी हो जाती है। तो ये है कि मुझे हिंदी को, हाँ ये था कि मेन मेन मतलब आप ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा एज एन एक्टर या परफॉर्मर आपके लिए सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए था कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो उस जो सौमिक सर ने लिखा है या जो स्क्रीन पे लिखा है उसमें मैं कैसा साउंड करूंगा और एक्टर्स के बराबर में। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बिकॉज इट्स यू आर आप अपने एक को एक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं, तो मुझे उसके साउंड के साथ अपना जो बोलना है वही बिठाना पड़ता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग से डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो सब, हाँ, लेकिन ये फायदा अलग से होता है कि आप कम से कम उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड और जो लिखा है, जिस तरह से जो डायलॉग्स लिखे हैं वो मेरे लिए हालांकि ड्रामेटिक थे। मतलब ऐसे आमतौर पर लोग बोलते नहीं है जिस तरह उसमें लिखा है। जिस तरह से बातचीत है ना वो बहुत ही, मतलब एक कहते हैं कि जिसे आप कह लीजिए कि तमीज कह लीजिए, बहुत ही एक एक लहजा है उसमें, एक अलग अलग तरह का लहजा है। तो वो लहजे वाली बातचीत है, तो वो बड़ी खूबसूरत थी। उसको मतलब बोलने में बहुत मजा आया। मतलब आई रियली एंजॉय, एंड थैंक यू सौमिक सर। मतलब इतना प्यारा सा लिखा है और एक्टर्स को जिस तरह से आपने बुलवाया है, वो साउंड जो कर रहे हैं,
तो वो कमाल है, कमाल है। Atul, मतलब Atul. आई रियली, Credit Atul for it. Because a lot of हाँ that, यस यस, is Atul. वो जो लिखा है, हाँ, तो वो कमाल है सर, बहुत कमाल है। आपको बोलने में बहुत मजा आया, हमें सुनने में बहुत मजा आया। अब पंकज जी, आप बताइए, आपको डिड यू प्रिपेयर फॉर हमारे पर्टिकुलरली आपने शो के लिए या? गरिमा, भाषा को लेके ना मेरे साथ कुछ कमाल की चीजें होती रही हैं। बिहार से हूँ मैं, और जिस बेल्ट से आता हूँ वहाँ बज्जिका बोला जाता है। भोजपुरी और मैथिली को मिक्स करेंगे तो बज्जिका एक भाषा है। तो बज्जिका क्षेत्र से आया आया हूँ मैं। और जब मैं बिहार से निकल के ग्रेजुएशन करके दिल्ली आया था 2003 में, सो एट द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। तो सुनीत टंडन जी से मुलाकात हुई मेरी। मिस्टर सुनीत टंडन जो इंग्लिश न्यूज रीडर हुआ करते थे उस जमाने में दूरदर्शन पे, अचानक से टकराया मैं उनसे एक स्टूडियो में, जहाँ पे सेंट्रल सीपीसी बोलते हैं, जहाँ दूरदर्शन के प्रोग्राम बनते हैं। तो सीपीसी के अंदर मैं कृषि दर्शन एंकरिंग के लिए मुझे कुछ मौका मिला था, तो मैं वो करने गया था। वहां पे मुलाकात सर से हुई। अब पता नहीं, मैं मतलब फैन की तरफ भाग के पीछे उनके, मैंने कहा सर, अरे सुनीत सुनीत भैया। और हम लोगों क्या ना, भैया बोलने का बड़ा वो है, मतलब हम, मैं कि हर किसी बड़े को भैया बोलते हैं। उनको पता नहीं कुछ वो अट्रैक्ट कर गया, क्या हुआ, उन्होंने बोला अरे यस यस पंकज, आओ आओ आओ। तो वो ऑफिस में ले गए, फिर बातें बातें होने लगी। उनको बड़ा अपनापन सा फील हुआ। मुझे तो मतलब था ही, हम बिहार वाले ना बड़ा अपनापन फील करते हैं एक्चुअली। हम हर किसी को बड़ा अपना मानते हैं। ये हम, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये बिहार के अंदर है। ट्रीट है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ये रहता है कि सब अपने हैं। बॉम्बे ने सिखाया कि नहीं नहीं बेटा, सब अपने नहीं होते हैं, ये बॉम्बे ने सिखाया। लेकिन बिहार का होने से हम मिलते हैं बड़े जोशो खरोश से, यार ये तो अपने भाई की तरह लग रहे हैं, या अपने चाचा की तरह लग रहे हैं, मेरे अंकल की तरह लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। तो सुनीत जी को ना वो मुझे बड़ा पता नहीं क्या अच्छा लगा। और वो ऑफिस में मैं जाने लगा उनके रोज, चाय वाय पीते थे हम लोग साथ में। तो वो जबान पे ना उन्होंने काम करना शुरू किया मेरे, ऐसे ही मतलब। उन्होंने बोला, अरे बिहारी तू थिएटर करना चाह रहा है, रेडियो करना चाह रहा है, जबान तो ठीक कर ले। क्योंकि मेरी जबान में वो आता था, र ड़ श वाला जो मुश्किल होता है ना, वो था, बहुत ज्यादा था। तो तब मैंने शुरू किया था थिएटर करना दिल्ली मंडी हाउस में। बट सुनीत जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो कर सुन रहे हो तो मैं उनको मतलब तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अद्भुत था। एकदम से बड़े भाई की तरह उन्होंने गाइड करना शुरू किया, और मैंने भी ध्यान देना शुरू किया कि नहीं, ये जबान बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हो तो। और मंडी हाउस में वैसे भी जब हम थिएटर करना मैंने शुरू किया था, तो बहुत कमाल के डायरेक्टर्स के साथ में मुझे मौका मिला। दिलीप शंकर जी मेरे गुरु हैं, गाइड हैं। दिलीप शंकर जी के यहाँ तो इंग्लिश प्ले का बहुत ज्यादा एक माहौल है। लुशिन दुबे, उनके साथ मैंने शुरू किया। फिर मंडी हाउस में जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं बड़े, उन सब लोगों के साथ, वीके शर्मा है, मोहन महर्षि है, एम के रैना है, रॉस्टनेबल, इन तमाम लोगों के साथ जब मैंने मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो वो जबान पे अचानक से काम होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो गया। और ये 7-8 साल तक जो है वो जबान पे काम हुआ। फिर आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 2009। तो यहाँ आने के बाद मौका मिला नहीं उस एज सच, लेकिन तब तक इतना ज्यादा रगड़ चुका मतलब जबान मेरा। और उर्दू, और मेरे साथ एक और अच्छा रहा है कि मैं पिक करता हूँ किसी भी लैंग्वेज को, मुझे बड़ा जल्दी पिक कर लेता हूँ। तो वो उर्दू से वैसे भी बड़ा खूबसूरत उर्दू लैंग्वेज है, तो मुझे इतनी खूबसूरत ये भाषा लगी। तो उसका जो जबान, मतलब कि जैसे स्क्रिप्ट में अगर पढ़ रहा हूँ तो उसमें तुरंत पिक कर लेता था कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब। जैसे शुरू शुरू में मुझे नुक्ते को लेकर बड़ा इशू होता था कि किस किस के अंदर नुक्ता होता है, जैसे ग ग है ना, ख ख, ऐसे जो नुक्ते वाले शब्द होते हैं, तो उस पर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो वो थिएटर में इतना मजा हुआ है कि अब तो वो ना, जब ये जबान पता चला कि अच्छा ये तो उस जमाने में एक्चुअली क्या होता था 30s 40s में ना, फिल्मों में उर्दू का बहुत बोलबाला था। और अगर आपकी उर्दू अच्छी थी ना, मतलब कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग में, आपको बड़े मतलब ज्यादा आपको मौका मिलता था, और वो आपके लिए प्लस पॉइंट था एक तरीके से। तो वो जो डायलॉग्स मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कहा ये तो वही पूरा का पूरा उर्दू का एक खालिस जो है वो उर्दू है। तो मुझे बड़ा मजा आया था, मतलब बहुत मतलब आनंद के साथ, और बहुत सिम मतलब बिना एफर्ट लगाए उसको जो है बोला था। तो मुझे बड़ा मजा आया, भाषा को लेकर कोई थैंक यू, इशू नहीं वाह हुआ वाह, है ना। बहुत बढ़िया खूबसूरत भाषा है। बढ़िया। नाइस। सौमिक जी, अगला सवाल मेरा आपके लिए है। तो जुबली में जो एक्ट्रेसेस हैं बेसिकली, वामिका कबी हो या अदिति राव हैदरी और श्वेता प्रसाद, उनका तो फिर भी सपोर्टिंग है, लेकिन ये दोनों मेन कैरेक्टर्स, अदिति जो सुमित्रा कुमारी प्ले कर रही हैं और वामिका जो नीलोफर प्ले कर रही है, इनके बारे में आपने कैसे सोचा? व्हाट थॉट प्रोसेस डिड यू हैव विद
विक्रमादित्य जी, कैसे आपने सोचा इनके बारे में? Um, uh, Sumitra Kumari primarily was positioned as this star, like a really big star. So, who is still at her prime, while her husband is faded out and उनकी picture नहीं चल रही हैं, she is kind of faded out. The other thing which I had wanted to create with the dynamics between the two of them, they're essentially a power couple, right? जिसको हम लोग आजकल power couple बोलते हैं. जी. The man is the maverick, क्योंकि उनमें वो streaks हैं, he gambles. हाँ, सट्टाबाजी लगाते हैं, कॉटन हो चाहे शेयर मार्केट हो, कुछ भी. On the other hand, the lady is way more calculative, and she understands. So one of the subtexts of her leaving the industry and going away in our story, I'm saying, was the fact that she saw that this man doesn't have it in him to run a profitable business. He's all for the vision. He's all for innovative things. He brings in cinemascope. He does all of these things. Like, there is a relationship which that sweet spot जिसको हम कहते हैं कि हाँ, this is what I want to do. This is the idea that I have and an ambition to do this. But the reality is that you have to, I mean, it's a business at the end of the day, right? So you have to pay people off. So आप ये lavish चीजें और हजार other चीजें you can't do. So that was the the yin and the yang is how it was balanced. And Sumitra Kumari is obviously way more. I mean, as the series goes, हम तो देख ही सकते हैं, but उसमें scene में भी है कि it's the distributor fraternity which listens to her more than him. Right? She's the one who takes the call. She's the one who takes the financial decision. She decides what she wants to do, what she can do. She spots talent, all of that. And this is the beauty of the film industry of what it was. We talk about equal opportunity. We talk about a lot of these things. But right down from Fearless Nadia, which is the Wadia movie tones, still Devika Rani and thereafter, and even others. I could name Shobna Samarth as somebody who was that powerful a person. Lata Mangeshkar herself, who was literally ran the industry, for the matter of fact. So they understood. They had the brilliant blend of art as well as commerce. I would like to talk about Hema Malini. It's much later on, but must remember Hema Malini is the person who gave a break to Shah Rukh Khan. So Dil Ashna is technically his first film that he signed. I mean, always had these powerful women in the industry and who've taken calls and all of that. That way, we've been way ahead of the industry has been ahead of the curve for a very long time. So yeah, that's essentially it. So she was a combination. She was kind of epitomized that time where it was the world was a lot more receptive to a woman taking charge, and this is a pre-Indira Gandhi world. So that's one. Nilofer is again a combination of various divas. I mean, if you look at trajectories of various actresses of that period who survived across years, so some would come from Lucknow and where like how Nilofer is the child of a Tawaif, and and there were people who basically came during partition as well, with their fathers and all of that, and were put through into the performing arts. So there were various elements of these characters. I mean, they also some of them actually came from really noble families as well. And the tutelage in music and dance was very essential. So, which is why a lot of these heroines came with a lot of training of and cultural upbringing, not just of song and dance, which is obviously a prerequisite, but also literature.
So hence the talaffuz and the awareness of Urdu was quite important. So they were all extremely like classically trained, individuals. So dance and the discipline required for it, all of these things came together. And obviously, once you enter a certain world, there is a certain demand. So a lady who's dancing Kathak, because Lucknow and Meena Bazar demanded that, comes to Bombay, which is in that period live music, and so yeah, so then you blend your craft accordingly. Right. Yeah. Garima, your last awaited question. Yes, so क्योंकि जब ये सीरीज खत्म हुई, मोस्टली आजकल ऐसा होता है कि जब कोई सीरीज खत्म हो रही होती है तो लास्ट में एक हिंट मिल जाता है कि अभी ये इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, बट जुबली में ऐसा कोई हिंट नहीं मिला हमें। लास्ट में वी डोंट नो कि सेकंड पार्ट आएगा, कब आएगा, सेकंड सीजन का कुछ है। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि सेकंड सीजन इज ऑलरेडी इन टॉक, आपका ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार है, कब आने वाला है? I don't know. But Vikram has to take a call, and I think Amazon has to take a call. So Vikram will, it's his vision. So he needs to figure out कि कहाँ तक क्या जा रहा है. So देखते हैं यार, मतलब एक तरीके से लिखा गया था, पर अब देखते हैं. Because you see, times are also changing, and it's not a very inexpensive show. It's an expensive show. Yeah. So अभी वो भी डिपेंड करता है कि ऐसा चीज आप दोबारा फिर से वापस बनाओगे. Is the incremental viewership that this has already been received with a certain amount of, people have lapped it up. So abhi, next what? There are expectations. Yeah. To put it very mildly. So when did this show And start? As in, कब start हुआ था ये? Was it in 2020 or 2021? as in shooting, Or maybe the creative process, writing process, whatever. creative process, 2014, Really? 2015. हाँ, 7 साल, 7 years. आई नो, मुझे 4-5 साल तो मुझे पता था कि 4-5 साल से चल रहा Yeah, था। yeah. It got made over, I think, 4 years, but it was being written उससे 3 साल पहले. I mean, when I wrote the pitch, which I had taken to the then company Phantom, तब, which was I think 2015. Oh. My हाँ. God. Yeah. लोगों को लगता है कि बस अभी सामने आ गया तो अभी का exactly. होगा ये, देखो कितना So मेहनत होता है, that's the great. टाइम लगता है। Yeah. So for a creator, the biggest challenge is whatever you make, okay? Not whatever you make. Some stories you have to tell now, क्योंकि आज की कहानी है, अभी बनानी चाहिए. It's immediacy. There is a certain kind of relevance to it. And some things you should make कि कभी भी बनाओगे, it doesn't matter. It will sustain itself because ये कहानी इतनी यूनिक है, ये वर्ल्ड इतनी यूनिक है, जब भी आए ये धमाल कर देगी, because it's unique. stories. So yeah, even the next thing that I'm doing with Sony Live is that is even more ambitious than this. Okay. Way more, conceptually at a story level, it is even more ambitious than Jubilee. And but yeah, it is timeless. So that story if it comes out after 10 years also, it will be relevant. So that's the challenge, right? I mean, if you're, and which is why it takes time when you're trying to make something which is, I won't even say best in India, something which is truly international, something which is truly world class. Right. Then give it time. Give it time. Then don't compromise. Don't say कि अच्छा यार इतना पैसा लग रहा है, कम में कर लेते हैं types. Right. So all hats off to Vikram for having persisted with this and done it exactly the way he wanted to do it. So he's it's all his. Yeah. Okay, I hope कि second season जल्दी आए। हम वेट नहीं कर सकते। I hope so. As an actor, मुझे भी लगता है आना चाहिए। हमें काम मिलेगा और। No, Soumik sir has written some wonderful films also, like Gulab Gang. Yeah, I know, sir. I know. Yeah, I know, sir. I know. Anthony कौन है? I was in my first job when when Anthony कौन है released. It was the Munna Bhai circuit का
film. Like Sanjay Dutt Right. was in a different universe altogether. I love that film. Totally different. यही होता है. I think somebody was talking about ना कि आप क्या script लेके जाते हो और finally क्या बनता है. True, true. So Anthony Coney originally was, the way I had written it, हाँ, was set in Dadar, हाँ. where I don't know how many of you have Into seen that Goa. film though. I think some beach place. No, it it's went. set in Thailand. It is set in Thailand. Thailand, हाँ. So it just completely takes away relativity. और उसमें भी था, उसमें जो assassin है, मास्टर मदन नाम है उसका. तो मास्टर मदन, named after मास्टर Madan मदन. is the key word. और वो hitman है. और वो सारा दिन तो कुछ काम है नहीं उसका. हाँ. तो वो सारा दिन पिक्चर देखता है. And in these old decrepit theaters. Right, और जब right. उसको आता है, कोई मैसेज आता है, तब तो ये सब वीडियो कॉल वॉल भी नहीं था. मैसेज आता है कि इसको मारना है, तब वो शो के बीच में नहीं जाता. शो खत्म होता है, फिर Yeah, it's निकलता है, an interesting film. मतलब अच्छा बना था. You should फिर ऑटो watch लेता that है, one. बस लेता है, जाता है, मारता है. So वहां से, so it is, that world becomes very interesting. Yeah. So जब आप यही सब जब आप लेके जाओगे किसी प्रोड्यूसर के पास, बोले नहीं यार थाईलैंड में चलते हैं क्योंकि whatever reason, financial or otherwise, so then you dilute your story. और फिर वो दिखता है. Vikas will be And- will be correlating his character to this one. Absolutely. Of what you want to make, and then this guy says नहीं यार इनका तो लफड़ा चल रहा है, ending change कर दो. And it's happened, right? It's happened in so many instances. I'll give you an example, the best example I can think of. But of course, there are great filmmakers who go around that, right? The idea of, I think Pyasa had a different ending, which was a tragic ending, and then Guru, I think the distributors prevailed, and he made sure they walked away into the sunset. Picture chali. Kaagaz ke Puli said, I will do exactly what I want to do. Picture nahi chali. The best example I can think of is Megadha Katara, which is Hrithik Ghatak's film, where the ending is, this woman, she's suffering from TB and her brother has come to see her. Achha. And he hugs her. And then the camera goes, you've seen Megadha Katara, Hrithik Ghatak's, immortal film. Yeah, Hrithik Ghatak. Yeah. Yeah, right. So the camera goes around in What a circles. director, my God. And when they showed the film to the distributors in the original cut, he had very happy sitar playing. So they were like very happy. Yare, chalo, acha, happy ending hai. He just changed the sound. He removed the sitar and added her crying to it and released the film. Right? So, Amazing. yeah. So he could do that. He's Hrithik Ghatak. So yeah. So ऐसे journeys तो यार, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं. We all know Sholay had 2 endings. Yeah. Right? Actually, yes. True. The second ending is available, in fact, on YouTube if you now search it. Right. अभी तो YouTube हो गया है, तो सबको पता मालूम लग है हमको. Yeah, for any kind of period that you do, the challenge is that. Now the challenge is that now I'm doing the Kishore Kumar biopic. So the challenge is not कि Kishore Kumar is, everybody will pay money to come and watch that man, right? About what a character he was and all of that. लेकिन सबको सब कुछ मालूम है क्योंकि आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, जिंदगी में सब कुछ. So now the crux and the craft and the challenge is to write something which nobody knows about him. So yeah, this is little off the topic, but is Ranbir Kapoor actually playing him in the biopic, or yeah, he is? Okay. he has announced it before we could. So yeah. Okay. So it was lovely talking to you, sir. बहुत मजा आया. Amazing. Thank you guys. Thank you so much for joining us. It's a lot of insights, lot of collaborative thing which came up right now, and our best wishes to all of you, Pankaj ji. And congratulations to all of Thank you you. once again. Jubilee इतना Thank you अच्छा so much. कर रही है. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye.